Hello student, welcome to my channel. We will discuss beautiful novel A Grain of the Wheat. It was written by Ngugi wa Thiong'o. He is a Kenyan writer and he belongs to Gikyo जिसे Gikyo भी कहते हैं. It's the largest ethnic group in central Kenya and they contributed 20% population of Kenya. This novel was published in 1967 and it represents the struggle of the Kenyan people against the Britishers who came in this land as the missionaries. First of all, they preaches the Christianity. They gave the message of Christianity and everything is equal. They same like that. We have a Christ and you have your own God, like that. So they try to create the similarities, create a good relationship with the Kenyan people, and slowly when they won the confidence and the trust of the Kenyan people, they occupied their land, and after stealing their land, they just put them uh, in the detention centers, in detention camps. They were tortured them, they murdered them, abducted them, raped them. Even the women were forced to do the works. Due to these all circumstances, Kenyan peoples, the different three important tribes, they decided to fight against the Britishers, and they start rising the movement Mau Mau. अब यहाँ पे if we will talk about the title of this novel, and the Gikyu people towards their native land movement, कि how show their commitment. Different people in African culture, the one person has to give the sacrifice or give the life for the welfare, for the prosperity, for their community. So it's just a normal thing. एक बंदा देता है सेक्रीफाइस पूरे अपने कम्युनिटी के लिए, और इसको वो बड़ी कदर की निगाह से, बड़ी इज्जत की निगाह से देखते हैं. सिमिलरली द सेम सिचुएशन हैपेंड. और जो यहाँ पे प्रोटैगनिस्ट है की ही को है, जो एक फ्रीडम फाइटर है, और वो बचपन से जो स्टोरीज़ हैं बाइबल की, जो उनको रीड आउट करता रहा, और उसने डिसाइडेड किया कि ही विल डू द freedom fighter struggle against the Britisher to throw them out from their land. लेकिन with the passage of time, when the story moves on, he attacked on the police stations. वहाँ पे he murdered the British man whose name was the Robinson, and he was a cruel person. After that, he became very famous, और सब ने Britishers ने they decided to kill him. He took the shelter in second person in the native of this land, of Theabe village, person whose name was Mugo. उसके हट में उसने पनाह ली. But Mugo was a such kind of person who brought up in a such situation that his aunt brought up lonely, and she was alcoholic, and she was usually using abusive language. So he has not any concern with what's going on around it, Mau Mau movements or like that. उसने जो थी एज अ विसल ब्लोअर के तौर पर जो की ही को जो थी इंफॉर्मेशन वो ब्रिटिशर्स को दे दी, और इस तरीके से वो पकड़ा गया और उसकी असैसिनेशन हो गई. अब यहाँ भी ये सारा जो टाइम पीरियड है वो 1963 का से पहले का है. अब 1963 में टाइम जो प्रेजेंट डे है, वहाँ पे अनाउंसमेंट होती है द पीपल वर डिसाइडेड टू इलेक्ट देयर न्यू लीडर, माऊ माऊ लीडर, जो रिप्रेजेंट करे उनकी कम्युनिटी को, उनकी नेटिव लैंड मूवमेंट को. तो यहाँ पे मुगो का नाम अनाउंस होता है, बट मुगो रिफ्यूज इट बिकॉज ही नो दैट ही हैज़ डन द सिन. उसने ही बी ट्रेड फ्रॉम हिज कम्युनिटी, अपने ही लोगों से बेवफाई की है, अपने मुल्क से, अपनी लैंड के साथ. सो ही कन्फेस्ड इन फ्रंट ऑफ द क्राउड, और उसके बाद उसे जो है जो विलेज से रेलिवेंट जो लोग होते हैं वो ऐसा नहीं करते कि उसको उसी वक्त द स्टार्ट बाइटिंग समथिंग लाइक दैट. वो ग्रेजुअली जो है क्राउड जो डिज़ोल्व हो जाता है, और जो टू इम्पोर्टेंट जो सोल्जर या कॉमोरेड्स होते हैं वो सीक्रेटली से ले जाकर उसको किल कर देते हैं, उसकी इंटीग्रिटी का ख्याल रखते हैं. इसी तरीके से सेटिंग को देखें, द फिक्शनल विलेज थे अबाई अब इन द कीनिया इन 1963 पोर्ट्रे द स्ट्रगल
और इसमें डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, हाउ दे बिहेव, हाउ दे रिएक्ट लाइक दैट. नरेटिव थर्ड पर्सन नरेटिव टेक्निक हैज़ बीन यूज्ड. और की ही क्यों जो है वो है जो कि फ्रीडम फाइटर जो मर चुका है, और मुगो जो है नेक्स्ट लाइन पे. इस तरह फ्लैशबैक प्रेजेंट से पास्ट की तरफ मूव करते हैं. अब मुख्तलिफ करेक्टर्स को देखें तो मुगो इज़ अ करेक्टर हु वॉज द ऑर्फन एंड ब्रॉट अप बाय द अल्कोहलिक एंड अब्यूसिव aunt, and Kihiko is a fighter, and I already told about that. And Gikonyo is a character who was the uh, childhood friend of Karanja, and he got married with Mambi, who is the uh, sister of the Kihiko, जो फ्रीडम फाइटर था. Kihiko उसकी बहन थी. उसके साथ जो गिकोनियो जो था उसने शादी कर लिया, लेकिन उसे डिटेंशन सेंटर में रखा गया, उसे टॉर्चर किया. एट लास्ट उसने कन्फेस कर लिया कि किसी तरीके से जो उसका टॉर्चर कम हो जाए, पनिशमेंट कम हो जाए, बट ऐसा नहीं हुआ और 6 साल के लिए उसे जो है कैद हो गई. और जो मम्मी थी वो निशाना बनती है करंजा का. वो जो होता है हमेशा से पसंद करता है, लेकिन मम्मी जो है पसंद करंजा की बजाय जो है गिकोनियो को प्रेफरेंस देती है, उससे शादी कर लेती है. अब करंजा जो है इम्प्रेगनेट उसे कर देता है, और 6 साल बाद जब गिकोनियो आता है तो उसे पता चलता है ये जो बच्चा है ये करंजा का है. और करंजा इज़ अ करेक्टर वॉज द चाइल्डहुड फ्रेंड ऑफ गिकोनियो, और Kihiko है, और ही इज़ वर्किंग इन द एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन, जो कि एक ब्रिटिशर जो है थॉमसन था, और उसकी जो वाइफ मार्जरी है उसके लिए वर्कआउट करता है, कोई मीनियल किस्म का वर्क. जॉन थॉमसन जो है बहुत ही क्रूल रूथलेस किस्म का आदमी है, जो कि अब अक्सर अपने जो डिटेंशन कैंप्स के अंदर इस हद तक लोगों को टॉर्चर कर देता है कि दे विल डाई. और इसी तरीके डिस्ट्रिक्ट ऑफिस रॉबिन्सन है, जिसको Kihiko किल्ड कर देता है पुलिस स्टेशन पर अटैक के बाद. थीम्स को इंडिविजुअल वर्सेस कम्युनिटी, किस तरीके से जो मुगो होता है डोंट वांट टू इन्वॉल्व इन थियाबे विलेज कॉन्फ्लिक्ट, ना ही वो मूवमेंट माओ में इंटरफेरेंस करना चाहता है, लेकिन Kihiko जो फ्रीडम फाइटर के तौर पर उभरता है, और इवन कि जब उसको किल कर देता है तो वो मशहूर हो जाता है पूरे ब्रिटिशर्स में, द टेरर ऑफ द वाइट मैन. लेकिन एक इम्पॉर्टेंट थीम जो है गिल्ट एंड रिडम्पशन है. मोगो को जब अनाउंसमेंट होती है उसे गिल्ट हमेशा रहता है कि उसकी मुखबरी की वजह से को जो है असैसिनेट किया गया, और ये राज उसके साथ होता है. ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट करेक्टर गिकोनियो होती है, जो उसने भी बेवफाई अपनी ज़मीन के साथ की होती है, लेकिन वो अपना जो गिल्ट होता है वो अब मुगो को बता देता है, और अपनी वाइफ को. लेकिन वाइफ भी इस तरीके से रिएक्ट नहीं करती. एक तरह से ऐसी कम्युनिटी है जहाँ एक दूसरे को सहारा दिया जाता है, इनकी प्रॉब्लम्स और नेगेटिव जो चीज़ें हैं उनको हाईलाइट की बजाय उनको सहारा बनाकर एक बैलेंस पर्सनैलिटी जो है अपने दोस्तों की, अपने अहबाब की पैदा करने की कोशिश की जाती है. ग्रेन ऑफ वीट इज़ आगे द रिडम्पशन फ्रीडम कैन ओनली पॉसिबल थ्रू द ओपन कन्फेशन. जब तक आप अपने गुनाह का एतराफ़ नहीं करेंगे तब तक आपको आज़ादी नहीं मिलेगी. मम्मी जो है वो गोकोनियो को जानती है. ठीक है, ये सारे का सारा जो चीज़ें साथ साथ चल रही हैं. क्रिश्चियनिटी इज़ अ वे ऑफ द इंट्रैपमेंट. वो यहाँ पे गोगी जो है इस नॉवल के बाद जो क्रिश्चियनिटी को छोड़ देता है. वो कहता है कि क्रिश्चियनिटी थी जिसकी वजह से उसने रोल प्ले किया. एक तरफ अगर गी को अब देखें तो वो लिबरेशन के तौर पर उसकी स्टोरीज को ले रहा है बाइबल की. ठीक है, मिशनरीज ने लैंग्वेज लर्न की, और आपको पता होना चाहिए कि जो अफ्रीका कंट्री है वहाँ पर मोर देन 1000 टू 2000 तक वहाँ पर लैंग्वेजेस मुख्तलिफ बोली जाती है. जैसे होज़ा है, जैसे यूरोबा है लैंग्वेज. तो यहाँ पे उन्होंने हमेशा ये क्या करते थे, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी पाकिस्तान और इंडिया में जो है पहले तजारत किया और फिर यहीं पे ऑक्यूपाई करते. यहाँ पे भी इन्होंने मिशनरीज़ को इस्तेमाल किया, इंडियन पाकिस्तान ईस्ट इंडिया कंपनी, और यहाँ पे मिशनरीज़ को इस्तेमाल किया, और उन्होंने उनका ये बताने की कोशिश की कि उनके ट्रेडिशनल बिलीफ गॉड्स के बारे में, उनकी वैल्यूज जो इन्फीरियर दे आर सुपीरियर. सो एक बाइंड्रीज क्रिएट की कि सुपीरियर इन्फीरियर की, ऑप्रेसर की ऑप्रेस्ड की, और उसके साथ साथ उनके अंदर ये जो एक ब्रेवरी और जो एलिमेंट्स होते थे उनकी अटैचमेंट जो है कम की, उनकी ट्रेडिशंस के साथ. इसी तरह मिशनरीज वर कैरिंग नॉट द बाइबल बट द सोड. वो गोगी कहता है कि वो दरअसल वो जो मिशनरीज उठा उठा के फिरते थे ना, वो दरअसल एक वेपन था जिसको उन्होंने यहाँ के लोगों के लिए, नेटिव लोगों के अगेंस्ट इस्तेमाल किया. क्रिश्चियनिटी इज़ नॉट अ टूल ऑफ साल्वेशन बट अ इन्वेजन एंड कोलोनाइजेशन. सो आप कह सकते हैं शैडो ऑफ द ब्रिटिश अथॉरिटी एंड बेनिवोलेंस ऑन द सेक्रेड प्लेसेस सो to show that no harm could reach those protected
बाय हैंड्स ऑफ लॉर्ड। इस किस्म के नज़रियात और मुख्तलिफ जो ट्रेडिशनल बिलीव थे, जैसे एनिमल सेक्रीफाइस है, पोलीगेमी है, इसी तरह बोथ मैन और वुमेन की जो सर्कमसाइजेंस वगैरह से एलिमेंट्स है, हर चीज़ के अंदर उन्होंने इन्फ्लुएंस किया। इसी तरह वो कहते हैं जी तुम्हारा जो गीकियो का जो गॉड है गाय, और इसी तरीके से हमारा जो गॉड है क्राइस्ट है। सो ये वो चीज़ें थी जिससे सिमिलरिटी जो गीकियो जो की ही को जो था, जो फ्रीडम फाइटर था, वो बेसिकली क्या करता था, वो स्टोरी से बहुत इंस्पायर था। वो कहता था सोल्जर केम फ्रॉम द वॉर एंड टोल्ड द स्टोरीज ऑफ व्हाट दे हैड सीन इन बर्मा, इजिप्ट, पैलेस्टाइन एंड इंडिया वाज नॉट अ महात्मा गांधी दे सेंट द लीडिंग द इंडियन पीपल अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। ही हैड विजन ऑफ हिमसेल्फ, खुद को भी देखता था, असेंट लीडिंग द केनियन पीपल टू फ्रीडम एंड द पावर। अगर अब जेंडर और पावर के लिहाज से देखें, एक ऐसा पेट्रार्की एग्जिस्ट करती है अफ्रीकन कल्चर के अंदर, हर कंट्री के अंदर जो है। इसी तरह कीनिया के अंदर भी ऐसा ही है। गीकियो जो सोसाइटी है उसके अंदर भी जो गोगी है पोर्ट्रेज द वुमेन एज अ स्ट्रॉन्ग एंड एज द मैन। वो लेकिन वो दिखाता है कि औरत कितनी स्ट्रॉन्ग थी और इसके बगैर जो फ्रीडम स्ट्रगल है पॉसिबल नहीं थी कि वो कामयाबी हासिल करते। 1963 में द सोसाइटीज पोलीगेमी, जहाँ जैसे आप चैन एच पी की वो थिंग्स फॉल अपार्ट देखें तो उसमें भी आपको पता चले एक से ज़्यादा जो है शादियाँ करने का आम रवाज है। वॉज नॉर्मल पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी। एग्जाम्पल गिकोनियो एंड हिज मदर वर टॉर्चर्स एंड मिसबिहेव बाय हिज फादर, और उसकी जो मदर थी उसी ने हार्डशिप बेयर करके सर्वाइव किया। इसी तरीके से एक और एग्जांपल है, जब गिकोनियो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट अपनी वाइफ के साथ वो घर छोड़ के चली गई मम्मी, तो उसके ज़माने में उसके बाप जो था, लड़की का बाप, खुद ही कहता है इन अ टाइम वुमेन कुड नॉट ब्लो फ्रॉम द हस्बैंड विदाउट द थॉट ऑफ रनिंग बैक टू हर पेरेंट्स। इस किस्म की पेट्रार्की एग्जिस्ट करती थी। हमेशा याद रखें, जहाँ पेट्रार्की और जो हमेशा जो मार्क्सिज्म होता है साइड बाय साइड एग्जिस्ट करते हैं, जहाँ क्लास डिफरेंसेस और ये सारी चीज़ें साथ साथ जो होती हैं वो साथ साथ चलती रहती हैं। तो ये एक ऐसी ओवरऑल स्ट्रक्चर भी अगर अफ्रीकन कल्चर के अंदर देखें तो हमेशा जो है मेल डोमिनेंट सोसाइटी ही है। व्हेन मिशनरीज टोल्ड देम अबाउट द क्वीन एंड द कंसेप्ट ऑफ मेट्रार्क रेजोनेट विद देम। अच्छा, वो आते थे मिशनरी बताते थे हमारे कंट्री के अंदर तो जी मलका है वो हुकूमत करती है, तब उन्हें याद आता था कि हमारे पर भी एक ज़माना तो औरतें हुकूमत करती थी। इवन के गोगी ने बताया कि जो औरतें थी वो आदमी को सब्जुगेट करती थी फॉर देयर ओन सर्विंग वीम्स और नीड्स के मुताबिक। वुमेन स्ट्रगल इन द इंडिपेंडेंस ऑफ कीनिया, यह मुख्तलिफ करेक्टर जैसे जो थी वेम्बियो थी, एक ओल्ड वुमेन थी, वो अपने कपड़ों के नीचे वेपन्स और मैसेजेस वगैरह जो होते थे माओ फ्रीडम फाइटर्स के लिए लेके जाती थी। फिर उसने कहा स्टेज पे कहती है कम फॉरवर्ड एंड वेयर द वुमेन स्कर्ट्स एंड द एप्रन्स एंड गिव अप देयर ट्राउजर टू द वुमेन। कितनी बहादुर औरतें, बूढ़ी औरतें थी, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो थे फॉरेस्ट के अंदर जो थे वो अपनी मूवमेंट के लिए आदमी कर रहे थे, या फिर औरतों को फोर्स लेबर करवाई जा रही थी ब्रिटिशर्स की तरफ से, उन पर टैक्सेस इम्पोज किए जा रहे थे। इसी तरह जो कीहिको की जो लवर थी नजेरी, उसको भी आफ्टर द डेथ उसने फ्रीडम स्ट्रगल कंटिन्यू किया और फॉरेस्ट में जाके उन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट वर्कआउट करती रही। Gogi is the power of the women to influence the events, especially where the women had failed to act. जहाँ मर्दों को नाकामी होती वहीं औरतें आगे बढ़ती और उस तहरीक को कामयाब बनाती। So he was saying an African woman had not been such an inner force, Kenan would not never been what is today. कि इस वही अंदरूनी जो फोर्स थी वो औरतों ही की वजह से थी, इस बॉन्ड की वजह से वो आज की ने जो है 1963 की यूरो की जो मूवमेंट है उसको सेलिब्रेट कर रहा है। द वुड्स इज़ द सिंबल ऑफ द यूनियन। यहाँ पे डांसिंग की जा रही, ड्रिंकिंग की जा रही, म्यूज़िक चल रहा है, पेयरिंग ऑफ की जा रही, गिकोनियो मम्मी, ये सारे करेक्टर के बेसिकली उनके एक ख़ास सिंबल है अफ्रीकन या गीकियो सोसाइटी के अंदर। अब मुगोज़ हेड जो है, जो मुगोज़ की हेड जो है सिंबल है उसके इनर की, कि असल में मुगो एक ऐसा प्रोटैगनिस्ट है जो इनसाइड डार्क है, लोनली है और कुछ भी अच्छा नहीं करता। सो इट वाज एन एक्सटेंशन ऑफ हिमसेल्फ, हिज होप्स एंड द ड्रीम्स। रेंज जो होता है परगेशन का एलिमेंट होती है, और एक दिन पहले जब वो बारिश होती है यूहुरो से पहले, जो सिम्बलाइज करते हैं प्योरिफिकेशन मोगो, उसके जो सिन था, उसके जो डार्क सीक्रेट्स था, उसको रिप्रेजेंट किया कि उसने कन्फेशन करके अपने आप को प्योरीफाई करता है अपनी कम्युनिटी के सामने। करंजा हुड जो यूज़ करता था वो सिंबल था, अपने आप को हाइड करने की कोशिश करता था ब्रिटिशर की पावर के अंडर, होम गाइड और थीव के तौर पर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।